दिया सारा, सारे आ गए कि नहीं टेस्ट में जिनको quantum mechanics. Just the course has got 4 chapters, 4 topics, 4 units. First unit is foundations of quantum mechanics, which is built on 2 basic things: wave particle duality and Heisenberg uncertainty principle. By the help of these 2 basic premises, we have evolved, built up the axioms of quantum mechanics. What are axioms of quantum mechanics? Only one axiom is the essence of axioms of quantum mechanics. If I want to measure any dynamical variable A in state psi, I have to solve for what values small a can have. Those things I have to solve an eigenvalue problem. A psi n is A n psi n. A n's are called eigenvalues, psi n's are eigenfunctions. And psi n, if I have to write psi, complete psi, which is C1 psi 1 plus C2 psi 2 plus Cn psi n, because only meaning to the psi is the probability. Therefore, this C1 square plus C2 square plus C1 square is 1. If it is so, it is called normalized wave function. Expectation value of E, expectation value I want to get, it is nothing. Psi star A psi d tau upon psi star psi d tau. These things, there are 7 postulates. Psi is the description of motion of a particle. Then psi square, probability density is proportional to psi square. If it is a probability, it must be single valued, finite and continuous. Every dynamical variable, there is a mathematical operator. Then eigenvalue problem, then expectation was totality. These were all the things which I did into the last class. That was, I have already covered the foundations. That means tutorial sheet 1. Whenever the sheets is given, I will solve it, because everything already I have done. Whole sheet can be answered. TS1. I have entered into the tutorial sheet 2. Tutorial sheet 2 has got 2 topics. Eigenvalue problem for measurement of energy, which is called Schrodinger wave equation, and its 5 one-dimensional applications, and one is axioms of quantum mechanics, because all questions related to axioms I have put into the sheet number 2, which I have solved in the last class, how to get the eigenfunctions and how to get the eigenvalues. Then last class also I have said these wave functions are always satisfying this condition: psi m star psi n d tau is equal to delta mn. What this was called? This was called orthonormality condition. There are 2 conditions inbuilt into this. Orthogonal means when delta m is not equal to n, delta mn is 0. That means psi m star psi n d tau is 0. Psi m could be 1, 2, 3. N could be 1, 2, 3. The psi 1 star, psi 2 star, psi 1, they are all 0. That is called orthogonality. Good. So 2 wave functions are always orthogonal. 2 states m and n, or 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, any 2 states are always orthogonal. This is a mathematical way. What does physically orthogonality means? That simultaneously particle cannot be found on the state m and n. And any state n, particle can be simultaneously found. So when m is equal to n, it is 100% chance is there that particle will be in some state psi 1, psi 2, psi 3. Good. That is why it is called orthonormality condition. Orthogonality as well as normality. Good. Now before starting,
to solve the eigenvalue problem for measurement of translational energy, which is called Schrodinger wave equation. I am just introducing something else so that I don't want to write this also in this format. For me, I would have written this. This whole condition I will never write integration and the integration over the one dimension or three dimension. Yeah, man. This bracket means integration over the integration or summation, whatever the need be, over the entire space. This integration, this means first, if I write this kind of bracket, then there is a this. Before this is a complex part. It is called bra part. This is bra part of this. And outside this is ket. ये ब्रैकेट कहाँ से आ गया? कुछ नहीं है, ब्रैकेट, BRAC, KET, सी को काट दिया, ब्रायन-केट नोटेशंस. गुड. क्वांटम मैकेनिक्स हॉल ऑफ फेम. Schrodinger already is built up the wave mechanics. Heisenberg uncertainty principle along with every mathematical operator can be represented by a matrix. Third name was Dirac. This is Dirac. Dirac's bracket notations. Everything in quantum mechanics is preferred to write instead of integration. This. I am not interested. We prefer to write whether integration or summation over the entire space. It is represented in terms of Dirac's bra and ket notations, bracket notations. What is this Dirac's? देखिए, this part of the bracket is bra part, is a complex part. This is called bra part and this is complex part. It means psi star. What this means? Psi star. And this is called state psi or ket psi. This is called ket part. Ket means psi. Or state is a complex, it is a real. Good. Now one thing must be clear to you. If I take the complex conjugate of ket, it will become bra and vice versa. So they can always be inverted like this. If I say take the complex conjugate, this will become this and vice versa. This will become this. Good. चलिए. Now try to appreciate. I say expectation value of A is psi star, A, capital A, psi ditto over psi star psi ditto. Whether integration or summation. Here I will write nothing. This bracket means summation or integration over the entire space divided by psi. Many of the times even I do not write psi because state is psi 1, psi 2, psi 3, psi n. They are the states. I do not write 1, 2, 3. So psi 1, psi 2. I do not even write. Prefer to write, try to appreciate n. When I write n, state n, that means it is psi n. If I write this n, that means psi n star. If I write this m, that means psi m star. Good. So orthonormality condition I would have written mn is delta m. Such a compact way of representing, correct? Many operators in quantum, every operator in quantum mechanics is a Harbison. And two canonical conjugate variables always I can write in complex conjugate of each other. A plus A minus. Whenever I say A plus A minus is the complex conjugate of A plus. Good. So notation is clear. That is what we will prefer to write. Now try to appreciate. How do I operate?
Assume that I am doing the measurement in two states. Any system is in just two states. Quantum mechanics is this ladder. What is quantum mechanics? Ladder. Let us say there are only two states. Could be n states also, but I am assuming my system is only having two states. State 1, state 2. Good. There are two states into this. I can always write like anything below 1 is 0, nothing, only two states. So I will introduce in due course of time A minus a ladder operator. A minus operated on state 1, क्या? 0. A plus operated on state 2 is what? 0. A plus operated on state 1 is 2. There will be some value, we will write. We write in due course. They are called ladder operators. What are they called? Ladder operators. Here, state value may be A1, here value may be A2. What are the A1 and A2? Eigenvalues. What are they? Eigenvalues. And they are the solutions of, I would have easily written eigenvalue problem. A measured in the state n. A measured in the state n is what? A and n. A measured in the state n is A and n. This is eigenvalue problem. I will not write A psi n. I will propose A measured in the state n. What is the value? A n. So A measured in the state 1, A1. A measured in the state 2, A2. Good. So this I have said. Psi is C1 state 1 plus C2 state 2. State must be typically psi should be 1. देखिए क्या है psi का मतलब है C1 1 plus C2 2. This is C1 1 plus C2 2. Correct? How to? चलो मैं C1 से पहले आपको psi1 y2 में समझा देता हूँ how to operate. How this to be operated? Try to operate. This is C1 psi1 plus C2 psi2 to be operated on C1 psi1 plus C2 psi2 is 1. कैसे ऑपरेट करा जाएगा? Try to operate it. Whatever is written this side of this, that is what? Bra part, complex part. So you open A plus B, C plus D. First you operate C1 psi1 on the whole. How this will be opened? Try to operate it. इसको देखो पहले मैंने लिखा I can write this C1 psi1 this whole as such plus C2 psi2 normalize होगा तो 1 होगा. Will write in due course of time. Try to operate it. How I am just showing how it is operated. Now I will operate C1 psi1 on the first one because I will not show you all the time. Plus देखिए भैया C1 psi1 C2 psi2 similarly यहाँ भी लिखते हैं. I am not interested. Try to operate it. C1 is a pure number. What is C1? Some pure number. This is C1 star and this is C1. Pure number out. Pure number out. So this will become C1 star C1. What is this? Psi1 psi1. What is this? Psi1 psi1 is always 1. Always. Every wave function is normalized in every state. Psi n is square d tau is 1. So n is 1. 1 1 is 1. Good. And 1 2 is what? 0.
कैलकुलेट करने ये होगी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस C1 स्टार C2 प्योर नंबर. इट इज व्हाट psi1 स्टार psi2 dito. That is psi1 psi2. Psi1 psi2 or psi2 psi1 are always 0 because wave numbers are always orthogonal. तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी मुझे. Exactly similar way here. C2 psi2 C1 psi1 finished orthogonal. क्या C2 psi2 C2 psi2 C2 star C2 psi2 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 is also 1. So what I get? Nothing. C1 square plus C2 square is 1. That is the normalization condition. That is how it is to be written. Try to appreciate wave function in every state. It has to be totally, holistically it must be normalized. And every individual state also it must be normalized. Try to appreciate. Particle could be there in the state 1. With what probability? C1 square. But particle has to be in state 1. So wave function individually satisfies normalization condition. Correct? समझ में आ गया? psi1 square, that is what I say when I say this condition. Mn is delta Mn. This automatically means Nn is 1 and Mn is 0. Automatically means this. There is it. Every state wave function is normalized. Good. So normalization is clear. Normalization means 100% chance is there that particle is there. And orthogonality means particle cannot be simultaneous in any two states because whenever there is a multiplication into the wave function, multiplication into the wave function means that wave function is holding simultaneously psi xy, psi x, psi y, simultaneously holding the coordinate xy, psi xt, psi x tt, simultaneously holding the coordinates. Correct? They are all framework. समझ में आ गया? तो वेव फंक्शन हैज टू बी इंडिविजुअली आल्सो नॉर्मलाइज्ड. देखिए, ओपन द असाइनमेंट. देयर इज अ गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन 21. बताइए क्या है? टू जस्ट इलेबोरेट. क्वेश्चन 21. व्हाट इज क्वेश्चन 21? अरे जल्दी पढ़िए, टाइम थोड़ा इतना. कंसीडर पार्टी बिकॉज टुडेज क्लास इज फॉर ऑर्डिनरी वेव इक्वेशन. कंसीडर पार्टिकल m in an infinitely one dimensional potential well. कैसा? one dimensional well. You need not know potential well. With a particle is in the given state. What is the given state? Psi x c sin plus कोई बात नहीं. Calculate C. Calculate C. One way is very simple, that you simply integrate. How? 1D box है, dimensions is A. वो लिखा हुआ dimension is A. So that means 0 to A psi star x psi x dx is 1. घर में जाके कर लीजिएगा. स्टार भी इसका वही होगा. स्टार करोगे तो साइन स्टार इज स्टार ऑफ दिस विल बी A प्लस B स्टार इज A स्टार प्लस B स्टार. C स्टार sin pi x by A plus C star by 2. This you solve. ताकि भी long mathematics is required. Do that. You can easily do. I am not interested. This is in two states. I know wave function in the 1D box in state n निकाल देंगे कभी √2 by A sin n pi x by A. This is the solution. अगर हम ये वर्कआउट करेंगे HN
क्या मतलब है? एनर्जी मेजर्ड इन द स्टेट n, आंसर विल टर्न आउट टू बी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर स्टेट n. दैट इज आइगन वैल्यू प्रॉब्लम. ये वर्कआउट किया मैंने. एच एन ENN is n square h square by 8 ma square. This is the energy, and state is given by this root 2 by a sin pi. This is normalized state. पहले स्टेट में वेव फंक्शन क्या होगा? ये आइगन फंक्शंस हैं, बिकॉज n इज देयर. व्हाट इज द वे आइगन फंक्शन इन स्टेट 1? n1 डालोगे sin pi x by a. भैया n सोल्यूशन का मतलब समझा रहा हूं शुरू में ही, इसलिए कोई जरूरत नहीं है मुझे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम व्हाट एवर आई एम डूइंग इन द फर्स्ट क्लास, फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू लास्ट क्लास, सेम थिंग हैज टू बी डन. एवरी रिजल्ट हैज टू बी कंफर्म टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी एंड आइगन वैल्यूज. भाई देन स्टेट 1 n मेजरमेंट आर डन. वन स्टेट में क्या हो गया? n को 1 डाला, क्या हो गया? sin pi x by a. दैट मीन दिस इज इन स्टेट 1 और स्टेट 2 sin 2 pi. नो अदर स्टेट. And wave function has to be always written as C1 psi1x plus C2 psi2x. जो समझा रहा हूं समझ जाओ, बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व करके दे रहा हूं. बिना इंटीग्रेशन के उल्टा लटक जाओगे, इंटीग्रेशन गलत हो जाएगा. और फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम मैथमेटिक्स इज टाइप टू बी अवॉइडेड. हाउ टू अवॉइड द मैथमेटिक्स? दैट crux has to be known, because in physics whenever I will ask the question, most of the questions are either ratio proportions, that kind of data is given where you can easily fit the data, until unless examiner is a fool of first order. क्योंकि ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और 2000 यूनिवर्सिटी हैं. कितनी यूनिवर्सिटी हो गई हैं आजकल? 2000. और 2000 में 1600 यूनिवर्सिटी तो कबाड़ी हैं. 1600 करेक्ट, 1600. और जो भी छोटा मोटा पढ़ाने लग जाता है, चाहे प्राइवेट में पढ़ाए चाहे सरकारी में पढ़ाए, अपनी कॉलर ऊंची करके हम तो टीचर हो गए जी, प्रोफेसर प्रॉफ. हाय वो लेक्चरर भी नहीं हो, क्या लिख लिया वो? प्रॉफ. प्रॉफ लिख लिया, गुड. और कभी यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं पास किया अपने टाइम में, लाइफ टाइम में. पीएचडी तो कर लिया लेकिन प्रीलिम्स पास नहीं हुआ. तो जब यूपीएससी बुलाता है ना कॉपी जांचने के लिए, कौन आएगा? तो कोई घटक साहब नहीं जाएंगे, कोई बड़ा टीचर नहीं जाएगा. कौन भरेगा सबसे पहले? रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी का टीचर. और हिंदुस्तान में क्या है? डेमोक्रेसी है. कैसे कह दूं कि घटिया है? कोई मेरे पास क्राइटेरिया है? ये तो मेरी क्लास है, मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोल के चला जाता हूं, ये मेरे ऊपर केस कर दें? गुड. डेमोक्रेसी में पूरी अलाउड है, एवरीबडी इज इक्वल. तो बहुत बार ऐसे ऐसे लोग एग्जामिनर बन गए जो कभी यूपीएससी का जीवन काल में अपने प्री नहीं पास करे, क्योंकि मैं जानता हूं, आई नो देम. इसलिए एमएससी बीएससी वाले बहुत क्यों डरते हैं? क्यों डर गए? क्योंकि उनके टीचरों ने कभी जीवन में क्या नहीं किया? प्री नहीं पास किया यूपीएससी का. और ये बात मैं कन्फर्मेटली बोल सकता हूं, कभी एमएससी बीएससी वाले उस मेरे टाइम में क्या नहीं पास कर पाते थे? प्री. मेरे टाइम में. अब भले ही कर जाएं, अब खूब संभावना है पास करने की, पहले नहीं थी. पहले तो, अभी तो है, पहले तो बिल्कुल नहीं थी. पहले तो एकदम बायस था, अगर इंजीनियरिंग एंट्रेंस पास किया है तभी प्रीलिम्स पास होगा, क्योंकि क्या था? ऑप्शनल था. और ऑप्शनल में आते थे 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आते थे फिजिक्स में. और कभी भी पेपर देखना चाहो तो मेरे से देख लेना, जिसको भी लगा कि मुझे बड़ी ज्ञान फिजिक्स आ गई है. और कट ऑफ था 83 क्वेश्चन करेक्ट. 83 क्वेश्चन जब करेक्ट होंगे कम से कम, तब प्रीलिम्स पास होता था ऑप्शनल का. इसलिए जिसके ये ओढ़ना बिछाना सब्जेक्ट का नहीं आता था, सारा रिजल्ट याद नहीं थे उसको, वो कभी प्रीलिम्स ही नहीं पास करता था. गुड. तो बहुत सारे, अब देखिए इसमें होता था फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है. 2 सब्जेक्ट होते थे, 2 ऑप्शनल्स. जो प्रीलिम्स जिस सब्जेक्ट से पास करता था दैट वाज हिज और हर फर्स्ट सब्जेक्ट. और मालूम पड़ जाएगा इसने प्रीलिम्स पास किया है फिजिक्स के साथ, क्योंकि उसको सब याद होगा. क्योंकि 30 क्वेश्चंस वर चूज एंड पिक, जिसमें कलम नहीं उठानी चाहिए. नंबर ऑफ फोटॉन्स आर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, तो लिख दिया है उसने कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एट टेम्परेचर 400 केल्विन आर 5 × 10⁸. व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स व्हेन द टेम्परेचर इज 2000?
गुड, 4 गुना हो गया, 4⁻³ 64 इंटू दैट, बस ओरली आंसर लगा दिया। नंबर ऑफ फोटॉन्स एट एनी टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू T³। जाके चेक कर लो, कैलकुलेट कर लो जाके नंबर ऑफ फोटॉन, जैसे किया था ना प्लैंक रेडिएशन फार्मूला। ये भी मेरा फेवरेट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एंड न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है आपको, सॉल्व किया तो आपको आता नहीं है, बिकॉज डेटा आई हैव डेलिबरेटली गिवन, ओनली आई हैव गिवन एट 500 Kelvin, number of photons are known. When the temperature is made 4 times, how many number of photons will be there? Number of photons are proportional to T³. So temperature becomes 4 times cube, कितना हो गया 4 का cube, multiply by that, answer is just written. There is no possibility that answer should be going wrong if you know the basic thing. That kind of questions are still asked. चलिए, तो इसको क्या करना, देखो कुछ समझाने के लिए लिखा मैंने। So psi x I will write C1 psi1 plus C2 psi2, and psi1 and psi2 are individually normalized. So normalized क्या है, psi1 की वैल्यू कितनी है बताओ? psi1 की वैल्यू है √2/a x/a, ठीक है भैया। तो अब भाई यहाँ जो लिखा हुआ, ये तो फॉर्मेट है, ये हम लिखेंगे थोड़ी देर बाद। अभी तो जो लिखा हुआ है उसको सेट कर रहा हूं, देखो C sin πx/a कितना हो गया, √a/2 psi1, क्या हो गया वो? दिस इज नॉर्मलाइज्ड, you can check 0 to a, this is a normalized wave function. So sin I psi1 normalized wave function is √2/a sin, so this is I have written C √a/2 psi1 plus next C/2 √a/2 psi2। ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। C1 psi1 plus C2 psi2। करेक्ट, नॉर्मलाइज होने के क्या है, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर हैज टू बी 1, इट इज नॉर्मलाइज। चलो करो, अब जाके चेक करना, इंटीग्रेशन से भी वही आएगा। इफ यू विल इंटीग्रेट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, देन आल्सो सेम रिजल्ट विल गेट, बट हियर विदाउट इंटीग्रेशन, विद रिजल्टिंग टू इंटीग्रेशन आई हैव गॉट, एंड आई विल प्रूव समथिंग एल्स आल्सो जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट। सो इट इज C स्क्वायर a/2 प्लस C स्क्वायर बाई 4 a/2 इज 1। क्या हो गया भैया, a/2 C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई 4, 5C स्क्वायर बाई 4 इज 1। तो C कितना हो गया, √8/5। C कितना हो गया, √8/5। डाल दो उसमें, डालो, C की वैल्यू आ गई, दैट इज इंटीग्रेशन आल्सो विल गेट द सेम वैल्यू, C एज √8/5 है। सब्स्टिट्यूट हियर, देन आई विल शो यू, आई वांट टू शो यू समथिंग। C/2 देखिए जी, √8/5 इंटू √a/2 psi1 प्लस C कितना, √8/5 और 2a 4 हो गया, इंटू a/2 8 कट गया, psi2 क्या हो गया बताओ मुझे, a कैंसल्स आउट, √4/5 psi1 प्लस √1/5 psi2। देखो शानदार लिख दिया कि नहीं। नॉर्म आपका C भी करेक्ट है, अपने आप मालूम पड़ेगा, क्योंकि दी C1 C2 आर प्योर नंबर्स, C1 C2 हैज टू बी प्योर नंबर्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन द फर्स्ट स्टेट, 4/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन अदर स्टेट, 1/5। बिना किसी कैलकुलेशन के निकाल दिया, लॉजिक समझे। I just wanted to elaborate wave function in every state is individually normalized and total is also normalized. If there are two states, psi is also 1. That's what I have put. √4/5 psi1 plus √1/5 psi2 is 4/5. Good. चलिए, I wanted to demonstrate something else. Good. इसमें when I measured H in the state N, what is the value of energy? N square H square upon 8 ma square N.
दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। ये देखो पहली बात ये समझो, दिस इज आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, दिस इज हर जगह यही करना है। 5 क्लास में 6 दिन यही काम करना है, 7 दिन भी समझ लो, प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है, नथिंग एल्स। एच मेजर्ड इन स्टेट एन, इसी को साई एन लिख देता हूँ। एच साई एन इज व्हाट, ई एन साई एन, ई एन साई एन। यहाँ पर ई एन की वैल्यू यहाँ पर है, एन स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, इसको मैंने इवन बोल दिया, एन स्क्वायर इवन एन, वेर इवन इज व्हाट, एच स्क्वायर बाई 8 एम ए स्क्वायर। गुड। पहले स्टेट में एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई, व्हाट इज एच इन स्टेट 1, E1 है, E1 1, where E1 is what? And these values are energy are commensurate with Heisenberg uncertainty, Heisenberg uncertainty as well as de Broglie material waves. This is a particle of one-dimensional box. Particle of mass m and energy E. Energy is only kinetic energy because particle is free. It doesn't encounter any potential between 0 and A. This x is equal to 0. This x is equal to A. First statement value even. This minimum value of energy is commensurate with de Broglie as well as Heisenberg uncertainty principle, because once this particle is going, it's like a wave, it will be reflected from this wall. Then ऐसे गया, ऐसे वापस आया, तो so many waves hitting the wall, reflected back. What are they formed? Standing waves. And for standing wave, both of them are always nodes. Good. So minimum position, minimum kind of motion which will happen is like this. They are always nodes. इससे कम कुछ हो सकता है क्या, बताओ मुझे? इससे अगर कोई कम हो सकता हो, स्टैंडिंग वेव बन सकती हो तो बना के दिखाओ ना मुझे। नहीं बन सकती, ध्यान रखना। दिस इज व्हाट मिनिमम स्टेट। Walls are always at nodes and particularly encounter once maxima. Maxima only once. State 1. One maxima, two minima. This is minima, this is minima. Only one maxima. State 1. State 1. क्या हो गया? A is equal to lambda by 2. A क्या हो गया यहाँ पर? lambda by 2. lambda कितना हो गया? 2 है. P कितना? h by lambda. h by 2 है. एनर्जी कितनी? h स्क्वायर बाई 8. वही लिखा हुआ मिनिमम एनर्जी. मुंह मत हिलाओ. पहले करा दिया है मैंने. करा दिया ना? पहले करा दिया है मैंने. नेक्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट सिर्फ ये हो सकता है. 2 मैक्सिमाज 3 मिनिमाज. ध्यान रखना. बट स्टेट इज डिफाइंड बाय whom? मैक्सिमाज. कितने बार मैक्सिमा होगा? 0 से 1 के बीच में जाएगा, 2 बार मैक्सिमा होगा. सिर्फ 2 बार, इसलिए स्टेट 2 है. नेक्स्ट स्टेट 3 मैक्सिमाज. n मैक्सिमाज. n में लिखता था एज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2 लिख देता. जनरलाइज वुड हैव बिकम समथिंग. नेक्स्ट स्टेट में 2 में एनर्जी कितनी हो जाएगी? वो कितनी हो जाएगी? 4 इवन. कितने? 4 इवन. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम. समझ रहे हैं जी? दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स. आई वांट टू गेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनीथिंग. मोमेंटम, एनर्जी, ये बताना था. ये जब सब ड्रामा इसलिए खेला गया है कि आपको किसी क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेजर करनी है. व्हेन वेव फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्टेट्स. ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, हर बार पूछता है, किसी भी प्रॉब्लम में पूछ सकता है. आई एम आस्किंग मेजर ए. गुड. क्या है? व्हाट इज दिस नोटेशन? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए विच इज मीन वैल्यू ऑफ ए, एवरेज वैल्यू ऑफ ए. हाउ इट इज कैलकुलेटेड? वेटेड एवरेज, वेटेड ओवर द प्रोबेबिलिटी. So how it is written? Sixth postulate. Sixth postulate. Psi A psi upon psi psi.
साई टिपिकली 1 होता ही है, जैसे अभी हमने यहाँ दिखाया। हम आई एम जस्ट शोइंग हमारा साई क्या था यहाँ पर, C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 और C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर वाज 1। गुड। सो देखिए ये हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अदरवाइज complicated mathematics is required. How I will write it in the format of Dirac's notation. Denominator is always 1, so I have to only एक बार दिखाना होता है साई, जैसे यहाँ पर लिखा था √4/5 साई 1 प्लस √1/5 साई 2, so 4 C1 स्क्वायर 4/5 प्लस 1/5 इज 1, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन इज देयर, डिनोमिनेटर इज 1, साई इज 1। ये दिखाना होता है बिकॉज डेफिनेशन इज ए साई अपॉन साई। Not necessarily that always psi is 1. If it is not 1, I will make it 1. If it is not 1, then I will make it 1 divided by C1 square plus under root C1 square plus root C2 square. It has to be always normalized, characteristic. So, अब ये देखो, हमें ये लिखना है psi and when psi is a combination of 2 states, then I will write generalize it as n states. देखिए it is C1 psi 1 plus C2 psi 2 A C1 psi 1 plus C2 psi 2। गुड। देखो भैया मैं तो झट से लिख दूंगा, लेकिन एक बार तुमको इलेबोरेट करता हूँ। देखो मुझे लिखना क्या है पहले बता देता हूँ। मुझे क्या लिखना है, ये तो है C1 स्क्वायर psi 1 A psi 1 प्लस C2 स्क्वायर साई 2 A साई 2। ये डायरेक्ट लिखना होता है। आई एम जस्ट इलेबोरेटिंग हाउ इट इज रिटन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल A व्हेन द स्टेट कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेट्स इज C1 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी इन दैट स्टेट इनटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ A इन द फर्स्ट स्टेट प्लस C2 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी इन दैट स्टेट इनटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ A इन द स्टेट 2। गुड। गुड। कैसे आया है, कुछ नहीं। देखो एक बार लिखा C1 साई 1 A C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस दूसरी बार लिखा C2 साई 2 A C1 साई 1 प्लस C2 साई 2। दैट इज हाउ आई वुड हैव रिटन। करेक्ट। फर्स्ट C1 साई 1 A C1 साई 1, अदर वन इज गॉन, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। इट इज C1 स्टार C1 साई 1 A साई 1। Good. So if this is in 2 states, I would have written एनर्जी की निकालनी थी तो क्या लिखता, C1 स्क्वायर साई 1 H साई 1 प्लस साई 2 H साई 2। I have got the expectation and these things holds good in any problem. Try to understand, these things holds good from any problem of quantum mechanics because eigen functions, if the measurement are made in any states, seventh postulate was that state is a combination of all the state before measurement, and once the measurement is done, it is only in one state. Good. So if I can ask you the expectation value of any variable, that is how I am going to write. So question उसमें यही पूछा था अगली बार। एक तो C को नॉर्मलाइज किया था, उसके बाद पूछ रहा व्हाट इज द एवरेज वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। और ये नहीं तो चलो और भी एक क्वेश्चन देखो। देखो एक क्वेश्चन और भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 2 15 मार्क क्वेश्चन। आई कैन सॉल्व द इंटायर सीट। ये ध्यान रखना, अगर शुरू के 2-3 क्लास समझ में आ गई 1 2 3 कल तक की, मैं कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर सकता हूं। सिर्फ क्या लिखना है, अगर मैं पूरा कोर्स चाहूं तो सिर्फ मैं 1 घंटे में पूरा क्वांटम मैकेनिक्स खत्म करके जा सकता हूं, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड फर्स्ट 3 क्लासेस। तो अभी समझा रहा हूं, जो 5-6 क्लास में रोज करूंगा ड्रामा, वो ड्रामा क्या है, क्या सॉल्व करना है मुझे क्या सॉल्व करना है। एच साई यही कहा था ना, एच साई इज ई साई, इसको बहुत जनरल लिख दिया, एच एन इज ई एन एन, यही तो सॉल्व करना है ना। Where I need to solve for particle in 1D box, I need to solve in particle in 3D box, I need to solve for step potential, I need to solve for rectangular barrier, I need to solve for simple harmonic,
oscillator. Correct. This is an eigenvalue problem. Can anybody narrate what was the exam 5? Narrate. इसका मतलब क्लियर है कि ये लिखने में तो कुछ नहीं दूंगा. आई एम नॉट आस्किंग एच साई जी साई लिख के बता दो मुझे. व्हेन आई एम आस्किंग नरेट एंड आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कोट. और मैंने जब नोट्स आज बनवाए हैं ना उसको बोल्ड करवाया है. एक ही एग्जिम को बोल्ड करवाया है, किसी एग्जिम को बोल्ड नहीं कराया मैंने. क्या था, क्या लैंग्वेज था उसका? एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट. इफ आई एम गोइंग टू मेजर ए डायनामिकल वेरिएबल ए whose operator is capital A और whose matrix is capital does not make a difference. A है तो उसका A कैपिटल A होगा. वो तो कोई बड़ी बात नहीं. डेफिनेशन है कि आपका नाम है, घर के बाहर नाम प्लेट लगा दिए, हिंदी में लिख दी, अंग्रेजी में भी लिख दी. It can take only those values which is the solution of eigenvalue problem. It cannot take any arbitrary value. तो हर एक तो these equations are worked out for two things. eigenvalues, मुझे En चाहिए और मुझे psi n चाहिए. दो ही चीज़ें तो चाहिए. ये लो, ख़त्म कर दूँ पूरा कोर्स, ख़त्म. ये लो, देखो 5 प्रॉब्लम हैं. पार्टिकल इन 1D बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड इनफाइनाइट वेल. और वर्क क्या कर रहे हैं? वी आर वर्किंग आउट एच psi n इज En psi. En is square even, where even is h square by 8ma square और f double square. and psi n क्या है? √2 by a. सॉल्व हो गई, सॉल्व हो गई. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. यहाँ पोटेंशियल 0 था, फ्री पार्टिकल था. क्या था? फ्री पार्टिकल. ये इनपुट है. पोटेंशियल क्या है? इनपुट है, लगाया है कि नहीं? देयर इज अ बैरियर और नॉट? देयर इज सम कांस्टेंट ऑन द मोशन और देयर इज नो कांस्टेंट ऑन द मोशन? नो कांस्टेंट ऑन द मोशन, दैट इज अ फ्री पार्टिकल. Force for conservative systems, V, Schrödinger wave equation is an equation for conservative system. Conservative system means V is a function of only position, Vx. If potential is a function of position, then force can be always derived. F is equal to minus get V. यहाँ पोटेंशियल ये था, जैसे ये लिखा उल्टा लटक गए तुम. 5 पेज का डेरिवेशन करूँगा. पहले पकड़ना है क्वेश्चन को, है कुछ नहीं. क्या सॉल्व कर रहा हूँ? एच साइज ई साइज कर यही रहा हूँ. एच साइज ई साइज. ई एन क्या आ गया यहाँ पर? ई एन आ गया यहाँ पर. ई एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा और साई एन इज सी एन एच एन एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एम ओमेगा बाई 2h क्रॉस एक्स स्क्वायर. एच एन एक्स कहने का 5 पेज लग जाएंगे करने में सोल्यूशन. एच एन एक्स आर कॉल्ड हर्माइट पॉलिनोमियल्स. व्हाट आर दे कॉल्ड? हर्माइट पॉली. एच 0x एन की वैल्यू 0 डाल दूँ. ग्राउंड स्टेट. जब यहाँ एनर्जी आप एच क्रॉस ओमेगा हो सकती है, विच इज Heisenberg uncertainty has given you, then is equal to 0. Minimum energy is not 0. Minimum energy is half h cross omega. When n is 0, n को 0 डाला तो क्या हो गया? C0 H0x, H0x is 1, H1x is x, H2x is 4, x square minus 2. Those kind of things they are written. They are the wave function. This is this. ऐसे स्टेप पोटेंशियल लिख दूँ. ऐसे 5 प्रॉब्लम्स हैं, 5 को सॉल्व क्या करना है? आएगा सोल्यूशन ऑफ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम मीन्स व्हाट? पहले ये क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है. बहुतों को यही नहीं मालूम होता क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. क्या करना है? यू हैव टू गेट, यू आर सॉल्विंग एन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम फॉर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी. सो यू हैव टू गेट द एनर्जी
eigenvalues, different values of energy in different states, given corresponding whatever the boundary conditions are there, and you have to get the eigen functions, because eigen functions will determine you the probability and average value, expectation value. जैसे मैं निकाल रहा था कहीं expectation value, ये क्या था जी, क्या क्या था मैंने, psi1 h psi1 c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये और देखना c2 स्क्वायर psi2, yes right, because it was in 2 states. If this would have been 3 states, c3 स्क्वायर psi3 h psi3. चलिए आप समझिए, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम इज h psi1. व्हाट इज द आंसर h psi1? E1 psi1. व्हाट इज h psi1? किसी भी प्रॉब्लम में एनीवेयर h psi1 इज E1 psi1. वैल्यू will keep on changing. Value of this may keep on changing. Look, for example, in 1D box, what is even h square by 8ma square, h psi1. तो देखो ये लिखा मैंने, जैसे अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखना चाहूँ, c1 स्क्वायर इज 4/5, c1 स्क्वायर इज 4/5, psi1 h psi1 क्या जी, E1 psi1. E1 इज ए प्योर नंबर, आउट. बताइए भैया, यही समझना है, यही समझा रहा हूं आपको, कुछ नहीं है. E1 इज प्योर नंबर, आउट. क्या हुआ, psi1 इज व्हाट, 1. तो कितना हो गया, 4/5 इंटू E1, मतलब प्रोबेबिलिटी. एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज नथिंग, प्रोबेबिलिटी वेटेड बाई द वैल्यू इन दैट स्टेट. 4/5 इंटू वैल्यू इन द स्टेट 1. स्टेट 1 इट्स आइगन वैल्यू E1. If the measurement is done in the state psi1, its value is observed is what, E1. I put the value E1. ऐसे दूसरे वाले में करता 1/5 psi2 h psi2 4E1 कितना, psi2. ये लो भैया, 4/5 इंटू E1 प्लस और 1/5 इंटू 4E1. करेक्ट, आगे आपको जो आना था वो 8/5 E1 आ गया. ये लो इंटू h square by 8. I have obtained the expectation value of energy. मालूम पड़ गया भैया. चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बताया मैंने, कौन सा क्वेश्चन, 14. समझ में आया कैसे, मैं लिख के दिखा रहा हूँ क्वेश्चन 14. पूछना है कुछ, किसी को कुछ पूछ को भैया. नीरज कुमार, तुम्हारा नाम याद कर लिया मैंने, क्या नाम, नीरज कुमार. गुड. क्वेश्चन 14 2001, बताओ क्या लिखा है. अरे वो नहीं छोड़ो, वो भी कहाँ थे मैट्रिक्स. वन बाई रूट 5 What is the question? Read the question. Calculate the energy of the oscillator. When I is asking energy of the oscillator, that means in quantum mechanics it is only average value, expectation value of the energy, nothing, need not specify. He is interested into getting the expectation value of energy. And what problem? Harmonic oscillator, linear harmonic oscillator. Only thing you should know, whenever I will work out for linear harmonic oscillator, h measured in the state psi n, answer is n plus half h cross omega psi n. Energy values are, ये मालूम होना चाहिए था बस. ये सोल्यूशन है. मैंने कहा ना, in every state there will be some solution. Whenever I will solve h psi is En psi n, here the answer will turn out to be n plus half h cross omega. These are the only values it can take. देखो भैया, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है. 1D box I was starting with 1. Here quantum number can be 0, and that is why it is called 0 point energy. Minimum energy is half h cross omega. Whenever I write n is equal to 0, energy is half h cross omega. ठीक. So देखो, whenever I write h0, what is the answer?
हाफ एच क्रॉस ओमेगा 0, ऐसे लिखूंगा। एच मेजर्ड इन द स्टेट साई 0, हमें साई 0 लिखने की जरूरत नहीं है। एच मेजर्ड इन द स्टेट 0 इज व्हाट, हाफ एच क्रॉस 0, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। एच मेजर्ड इन द स्टेट 1 कितना, 3/2 एच क्रॉस ओमेगा 1। एच मेजर्ड इन द स्टेट 2, व्हाट इज द वैल्यू, 5/2 एच क्रॉस ओमेगा इंटू 2, करेक्ट। देखो भैया, गिवन वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज और नॉट, 1/5, 2/5, 2/5, normalized wave function. So if I want to get average value of psi h psi upon psi psi, so this psi is what, 1/5 plus 2/5 plus 2/5 is 1. ऐसे देखो, denominator is 1, denominator is 1, normalized wave function, ये प्रूव कर दिया ना। Now I have to get only psi h psi. So psi h psi is nothing. क्या है, c1 square, that is 1/5 psi 1, sorry psi 0 h psi 0, जो लिखा है वही लिख दिया मैंने, 1/5 psi 0 h psi 0। नेक्स्ट 2/5 psi 1 h psi 1 प्लस साइड टू साइड टू। देखो भैया 1/5 ये कितना है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा हो गया, व्हाट इज दिस, 2/5 ये कितना हो गया भैया, 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, ये हो गया कितना, 2/5 5/2 एच क्रॉस ओमेगा, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। समझ में आ गया। वेव फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टेट ओनली। I am elaborating the 7th postulate, C1 psi 1, C2 psi 2, C3 psi 3 and C1 square has to be 1, normalization. Everything I have elaborated by the help of these two, correct? Good enough. We can solve any problem in fact. Question number 20 कर लीजिए चले, question number 20 क्या है, question 20 कुछ भी कर सकते हो, any problem I can solve. क्वेश्चन 20 क्या था जी, पढ़ दो। Ground state wave function of linear simple harmonic oscillator is psi equal to a e की power minus alpha h square by 2. Calculate the constant a and the average values of x square and x. देखो कहीं पर भी निकाल सकता हूँ, ये तो कम पूछा है, 4 बार पूछा है, 4 टाइम द सेम क्वेश्चन हैज बीन, इज ग्राउंड स्टेट, यही कहा था ना, m ओमेगा नॉट बाई 2h क्रॉस x स्क्वायर h0 h0 वाज 1 एंड c0 की जगह यहाँ a लिख दिया है, क्या फर्क पड़ता है यार, नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मलाइज करने का क्या मतलब हो गया, दिस रियल psi 0 स्टार psi 0 dx इज 1, x विल गो फ्रॉम वेयर टू वेयर, -infinity टू +infinity, ये लो जी, ए स्क्वायर एक लाइन में लिख दिया, ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज 1, ये लो, गुड, वाई इज आंसर, -infinity रूट पाई बाई अल्फा, -infinity to infinity e raised to power minus alpha x square plus beta x dx is root pi by alpha e raised to power beta square by 4 alpha, a square रूट पाई बाई अल्फा इज 1, आ गया, ए की वैल्यू आ गई कितनी जी, रूट अल्फा बाई पाई, नॉर्मलाइज हो गया, गुड। एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप भाई साहब समझ में आ रहा है कुछ छोटा मोटा आपको, कल नाम बताया था आपने अपना, क्या नाम बताया था, अनुज बताया था, मुझे याद हो गया था, वैसे अनुज नाम था, आपका क्या नाम था, दयाल, कितना अच्छा नाम है दयाल, दयाल सिंह कॉलेज भी है, तो है नाम ही है क्या हो एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताओ क्या होनी चाहिए, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, 0 क्यों होनी चाहिए, देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स
क्या साई स्टार एक्स साई डी एक्स डिवाइडेड बाई साई स्टार साई डी एक्स, ये नॉर्मलाइज कर ही रखा है, फॉरगेट अबाउट दिस। सो देखो, और ये रियल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया ए स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ, क्यों ऑड फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर निकालना होता तो क्या करते, अगला एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, चलो एक्स तो निकल गया, फिनिश्ड, लो यही एक्स स्क्वायर बनाया, एक्स स्क्वायर निकल गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई रेल एक्स स्क्वायर, जीरो नहीं होगा बस। दिस इज रिपीट क्वेश्चन, 2020 also it has been asked, right? Apni said if I do the whole assignment, then tutorial sheet I need not solve, because I will show you that questions are repeat. He will ask anywhere in quantum mechanics, every result will confirm to Heisenberg uncertainty. क्या होगा यहाँ पर, डेल्टा एक्स किसी भी स्टेट में होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज एच क्रॉस बाई 2। यहाँ देखोगे ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, इट विल सेटिस्फाई एग्जैक्टली एच क्रॉस बाई 2। दिस इज द ओनली केस वेयर द रिजल्ट विल टर्न आउट टू बी h cross by 2. Everywhere else it is more than h cross by 2, because it is simple harmonic oscillator, ground state. This wave function अगर इसको plot करोगे, is a symmetric about x is equal to 0 line and it is a Gaussian wave function. Gaussian wave function, correct? हाफ एक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, उसी के फॉर्मेट में देखो। अभी ये प्रूव करना, ये पूछा हुआ है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड 2 times. सो दैट डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज एच क्रॉस बाई, जैसे हमने एक्स निकाल दिया एक्स जीरो, एक्स स्क्वायर निकल गया, डेल्टा एक्स आ गया, व्हाट इज डेल्टा एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, सो इट इज ओनली एक्स स्क्वायर। ऐसे ही पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स होल स्क्वायर, दोनों निकाल दो, प्रूव कर देंगे। एंड दिस होल्ड्स गुड फॉर एनी स्टेट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी होल्ड्स गुड फॉर any state. Ground state, simple harmonic oscillator, it will be exactly h cross by 2. Any other state, it will be more than h cross by 2. That's it. And that problem I can ask you in any other problem also, even in 1D box. So that result confirms to Heisenberg uncertainty principle. Ground state wave function sin pi x by a confirms to Heisenberg uncertainty principle. I can ask you, because every result confirms to wave particle duality में दिखाया, and every result confirms to Heisenberg uncertainty. Heisenberg uncertainty is delta x delta px is h cross by 2. So सिर्फ वेव फंक्शन मालूम होना चाहिए मुझे, बताओ भैया मुझे क्या मालूम होना चाहिए, सिर्फ वेव फंक्शन, एंड वेव फंक्शन मालूम हो गया, कैसे मालूम पड़ गया, whenever I worked out a psi g psi, I have determined wave function in every state which are called eigen functions. क्या बता रहा हूं, नेचर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स व्हाटएवर कैन बी आस्क्ड ऑन एनी प्रॉब्लम, because problem by problem only I will work out energy eigenvalues and eigenfunctions, but these kind of problems always remain, because they have to confirm to a particle duality, they have to confirm to Heisenberg uncertainty. That is how I have evolved the first postulate. Why moving particle is equal to a wave function? Because I say here wave function is not a displacement of medium particle, no meaning. It is having the complete information about the particle. Whatever you want to get about the particle, I can get by the help of psi. देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू x निकाल दी, px निकाल दी, किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लूँ। a, I am not saying x px, मैं तो a निकाल रहा था, a मुझे नहीं मालूम है क्या है, क्या करना, कुछ नहीं करना, साई a साई, जो भी a हो उसका ऑपरेटर लिख दो और इंटीग्रेट कर लो, ऐसा सम कर लो, साई a साई। हमें तो मालूम ही नहीं है क्या है, कुछ भी होगा ये, whatever, but it should be what? Dynamical variable, because only dynamical variables are represented by mathematical operators. Only dynamical variables, they can assume real values, therefore operators are all Hermitian. समझ में आ रहा है? चलिए जरा इसको भी कर दीजिए, खोला ही है तो कर दीजिए इसको। अब ये इवन फंक्शन है तो को फार्मूला तो मुझे 0 to infinity का याद है, गामा फंक्शन तो 0 to infinity में लगता है। ये लो जी, 2
ए स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन अभी किया था ना हमने, अभी ए स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे जो भी थी, एक्स स्क्वायर 0 to ∞। अब क्या हो गया 1/2 अल्फा, 1/2 अल्फा रेज टू पावर 3/2 गामा 3/2 हाफ रूट पाई, हाफ रूट पाई आ गया। देखो देखो तो बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, चेक करके बताओ मुझे। अरे यार ऊपर नहीं जा रहा, बताओ व्हाट इज एक्स स्क्वायर। ये हो गया, कितना हो गया 1/, एक कट गया ना, 1/2 अल्फा रेज टू पावर 3/2 रूट पाई ए स्क्वायर, रूट पाई बाई अल्फा। ए स्क्वायर क्या था भैया, तुमको याद करना है। मुझे देखो, मुझे सब कुछ याद है, एक बात ध्यान रखना, मुझे एक एक रिजल्ट याद है। याद किसको करना, तुमको करना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। रूट पाई बाई अल्फा, अल्फा अल्फा बाई रूट, अल्फा बाई रूट पाई क्या था 1/a स्क्वायर। क्या निकाला था हमने ए स्क्वायर क्या निकाला था, रूट अल्फा बाई पाई, अल्फा बाई पाई, रूट अल्फा, अल्फा रेज टू पावर हाफ अपॉन रूट पाई, पाई से पाई कट गया, ये से ये कट गया, क्या बचा 1/2 अल्फा। यही बचा कि नहीं बचा, यही बचा एक्स स्क्वायर। डेल्टा एक्स आ गया, क्या आ गया डेल्टा एक्स, देखते हैं यार सही है कि नहीं, मुझे भी देखने दो। 1/, I give you for 15 marks and then I will check all the 4। x और px लिखने के लिए दो नंबर दूंगा, क्योंकि मतलब कुछ नहीं है, नथिंग। px भी 0 हो जाएगा, अभी दे देंगे बता देता। px इज सेम लॉजिक। निकल गया डेल्टा एक्स, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। फिर से बताइए साई 0 क्या था हमारा, ए रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। ए क्या निकाला था हमारा, रूट अल्फा बाई पाई रेज टू पावर हाफ भी था ना, वो ए था, ए स्क्वायर यही था। नाउ आई हैव टू गेट पी एक्स क्या क्या लिखूं पी एक्स के लिए, साई 0 पी एक्स का ऑपरेटर, पी एक्स कैपिटल पी एक्स, हाँ वैल्यू लिखूंगा साई, नॉर्मलाइज ऑलरेडी है सो आई डिड नॉट राइट। पी एक्स इज व्हाट, माइनस आई एच क्रॉस डेल वाई डेल एक्स। चलो सीधे इंटीग्रेशन में जा रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी ए ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स, रियल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए स्टार इज सेम एज ए, अदरवाइज ए स्टार भी लिख सकते थे। पी एक्स माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ओनली फंक्शन ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स टू बी ऑपरेटेड ऑन ए ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। यही हो गया जी। देखो भैया कोई तीर नहीं मानना, इसको जैसे ही डी बाई डी एक्स किया एक्स हो गया, e raised to power minus alpha x square minus 2 alpha x, x into this is odd function, integration is over, minus infinity to 0। इतना टाइम नहीं होता है जी, सोचते रहो। e raised to power minus alpha x square d by dx किया ना, उसका e raised to power minus alpha x square हो गया, alpha x square का किया तो 2 alpha x हो गया ना, x into e raised to power minus alpha x square odd function, finished। एक्स स्क्वायर को तो करना ही पड़ेगा ना आपको, एक्स स्क्वायर को तो करना ही पड़ेगा, कोई बचने का उपाय नहीं है, इसलिए क्यों समय खराब करना है उसमें, सीधे ऑड फंक्शन लिख के खत्म। अब जब पी एक्स स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ हो गया पी एक्स स्क्वायर। कल बताया था पी एक्स का ऑपरेटर था माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स, पी एक्स स्क्वायर का क्या हो गया जी, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर d2 बाई dx2। अब 2 बार करो, अब इसको 2 बार करो,
अभी जीरो नहीं है बस, अब इसको 2 बार करो, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर d2/dx टू ऑपरेटेड ऑन दिस। सो पहली बार क्या हुआ था, ये होगा तो ए स्क्वायर बाहर हो गया, देखो ए स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 तो खैर होगा ही होगा। चलिए बताइए, पहली बार पहला डिफरेंशिएशन क्या हुआ इसका, 2 अल्फा एक्स अच्छा अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 था ना, 2 था, 2 था, जीरो में तो कोई फाइट नहीं है। 2x बाई 2 सिंपली अल्फा एक्स करेक्ट, माइनस अल्फा एक्स, माइनस बाहर था, माइनस अल्फा एक्स हो गया अल्फा। अब करना है आपको माइनस अल्फा मतलब प्लस अल्फा हो गया। अब आपको करना है एक्स ई रेस्ट पावर अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 d/dx। This whole exam is the exam of practice. Nobody else will do practice for you. खुद को ही करना है। जो कम प्रैक्टिस करता है उस एग्ज़ाम को कभी पास नहीं होता है। सारे ये मैथमेटिक्स खुद से करनी आनी चाहिए झट से। फर्स्ट फंक्शन ई रेस्ट टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 एज सच नाउ एक्स हो गया से हो गया माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो सो अल्फा आउट, सो ये हो गया मेरा ई रेस्ट टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 आई टेक कॉमन। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं पड़ेगा मेरा। ई रेस्ट टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 1 माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स पी एक्स स्क्वायर। अब निकालो सारे को पूरे को, इसको बताओ मुझे क्या हुआ। ए स्क्वायर इज अल्फा एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। क्या बचा जी 1 माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इवन फंक्शन 2 0 to infinity 2a स्क्वायर अल्फा एच क्रॉस स्क्वायर। देखिए पहला इंटीग्रेशन तो कुछ नहीं, रूट पाई बाई अल्फा, हाँ क्या हाफ रूट पाई बाई अल्फा। हाफ रूट पाई बाई अल्फा। दूसरा माइनस अल्फा 0 to infinity एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1/2 अल्फा रेस्ट टू पावर 3/2 गामा 3/2। बताओ उसकी वैल्यू बताओ मुझे, जस्ट चेक। आखिरी मालूम पड़ जाएगा गलत है कि सही, बिकॉज आंसर विल बी वेरी नाइस। देखिए विदाउट डूइंग इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर अगर कोई इंटीग्रेशन करता दिख गया तो क्या लगेगा वो, दैट मीन्स ये he or she has not done anything. You do not have that much time to integrate. Only you have to put into the formula and directly write down the formula. Directly. 1/2 alpha raised to power 3/2 gamma 3/2. I am just rewriting. 1/2 alpha raised to power 3/2. Gamma 3/2 is 1/2 रूट पाई। ये देखो ये हो गया रूट पाई बाई अल्फा हो गया कि नहीं, 1/4 1/4। ये भी हो गया माइनस 1/4। देखो यहाँ आगे माइनस होना चाहिए था फिर, अच्छा प्लस तो हो गया ना, 1/2 रूट पाई बाई अल्फा 1/4, दिस इज 1/4, सो इट इज़ नथिंग। फिर से बताओ 2 अल्फा एच क्रॉस स्क्वायर ए स्क्वायर क्या लिखा था, रूट अल्फा बाई पाई, रूट अल्फा बाई पाई, और ये हो गया 1/4 रूट पाई बाई अल्फा।
दिस कैंसल्स आउट. क्या बचा भैया? अल्फा एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2. गुड. डेल्टा पी एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन टर्न्स आउट टू बी व्हाट? अल्फा एच क्रॉस. डोंट एक्सपेक्ट दैट आई विल डू ऑल द टाइम. एक बार इंटीग्रेशन करके सब कुछ दिखाई दे रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ. और जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता उसके बस का फिजिक्स है ही नहीं. मेरे लिए तो ये 2-3 का टेबल है. जिसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में फाइट हो रही है ये नहीं कर पाएंगे वो, तो भैया फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हो यार? है ही नहीं तुम्हारे लिए, है ही नहीं तुम्हारे लिए. गुड. सो डेल्टा पी एक्स क्या हो गया? क्या होगा डेल्टा पी एक्स? रूट अल्फा बाई 2 एच क्रॉस. डेल्टा एक्स क्या था बताओ? रूट 1/2 अल्फा. देखते हैं सही है कि नहीं. देखो भैया डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स रूट 1/2 अल्फा इंटू अल्फा बाई 2 इंटू एच क्रॉस. देखो भैया आ गया कि नहीं हाफ एच क्रॉस? परफेक्ट कैलकुलेशन है हाफ एच क्रॉस. और यही देख रहा हूँ जब भी मैं ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन कुछ भी अल्फा नहीं मैं कॉम्प्लिकेटेड कर देता एम ओमेगा बाई 2 एच क्रॉस एक्स स्क्वायर या कुछ और लिख देता, आगे भी कुछ लिख देता. बट इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट इफ इट इज ए बेल शेप्ड कर्व गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आंसर विल बी एच क्रॉस बाई 2. अदरवाइज दिस आंसर इज नेवर अचीव्ड. नेवर. ये ध्यान रखना, बड़ी बात बता रहा हूँ. कहीं ये पूछो कि एच क्रॉस बाई 2, एच क्रॉस बाई 2 लिमिट इज ओनली अचीव्ड इन केस ऑफ Gaussian wave function. Otherwise, even in 1D box, same calculation you will do. I have done everything for 1D box. आपको वेव फंक्शन दे दिया 1D बॉक्स का, कैलकुलेट टू द ग्राउंड स्टेट, एग्जैक्टली सेम थिंग. जाके कैलकुलेट करो. आई हैव गिवन यू दिस. इसमें भी निकालो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स. या चलो और जनरलाइज कर देता हूँ. ये दे दिया मैंने आपको साइन साई एन एक्स. बस ये मैंने नोट्स में सॉल्व कर रखा है. वेव फंक्शन इन सम प्रॉब्लम 1D बॉक्स इज गिवन लाइक दिस. साई एन इज रूट 2/a साइन n पाई x बाई a. फाइंड आउट डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एंड चेक व्हाट इज द वैल्यू इन ग्राउंड स्टेट, व्हाट इज द वैल्यू इन फर्स्ट स्टेट, व्हाट इज द वैल्यू इन सेकंड स्टेट, so on and so forth. Every state it is more than h cross by 2, but it's never h cross by 2. In 1D box problem, it is never 1.5 h cross, never. It is more than that in every state, because nowhere this wave function is your Gaussian. ये Gaussian नहीं है, ये Gaussian नहीं है, ये साइन वेव फंक्शन है. गुड. हर जगह यही करना. चलिए These things have to be done everywhere. चालू कर दें यूनिट 2. यूनिट 2 आइगन वैल्यू प्रॉब्लम फॉर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी in a translational motion in a क्या है एनर्जी, क्या है एनर्जी? काइनेटिक. गुड. काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोमेंटम पी स्क्वायर बाई 2. 3D होता था पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर. 1D है तो good. Plus potential if there is some, if there is no potential, no problem. In mechanics, ultimately quantum mechanics is also mechanics. Energy is mechanical energy, which is kinetic plus potential. And here we write in terms of potential. What is the difference between potential and potential energy? Nothing. Potential energy per unit quanta. Potential energy. Energy लिख रहे हैं total. Energy लिख रहे हैं. Plus what? Vx. That's Vx. The way I write Vx, it is a conservative. Conservative means energy is a constant value. I am measuring classically this energy is a constant value.
When v is a function of x, classically this is a constant value. Quantum mechanically also is a constant value. h square by 8 ml square, h square by 8 ml square. Variable है क्या? Constant. First state h square by 8 ml square. Next state 4h, but it is a constant. अरे छत है, 10 फुट पे छत लगाई हुई है, अगली छत 20 पे लगाई है, अगली छत 30 पे लगाई है, उछल कूद तो करनी पड़ेगी, उतनी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी. पहले में अगर 10 हैं, अगली फ्लोर में 20 हैं, अगली फ्लोर में 30 हैं, अगली फ्लोर में 40 हैं. यू हैव टू क्लाइंब 10 ladders, 10 steps. You have to spend money, energy. 10 स्टेप चढ़ोगे तो एनर्जी लगेगी, 20 स्टेप चढ़ोगे तो और लगेगी, 30 स्टेप चढ़ेगी तो और लगेगी. करेक्ट. सो एनर्जी फिक्स्ड स्टेप्स. आई वांट टू मेजर दिस. ऑपरेटर फॉर दिस इज एच. ऑपरेटर फॉर दिस इज एच. अब इसको क्या लिखूँ ऑपरेटर वाइज? माइनस एच क्रॉस बाई 2m. पी एक्स इज d2 बाई dx2. पी एक्स क्या था? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर d2 बाई dx2. वी एक्स का ऑपरेटर वी एक्स ही है. आएगा वैल्यू प्रॉब्लम क्या होगा? आई वांटेड टू मेजर एनर्जी इन स्टेट साई. ऑपरेटर इज एच. एच साई जी साई. एवरीवेयर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एच साई जी साई. Not from any differential equation ki ordinary. This is, you have to start from, this is eigenvalue problem. This is extreme of quantum mechanics. I want to measure E in the state psi. Operator is H multiplied by psi is an eigenvalue problem. Correct. So what values E can take, which is the solution of this equation. Solution how I am going to get? Yes, psi and E and science. I have to get E and you have to get the science. Solution of eigenvalue problem means you have to get the E and you have to get the science. That is the solution. Now I will get this is in this case is this. अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर होता तो ये तो होता, but this must have been half kx square. Good. We will write case by case. We will solve this. So now I am writing h की वैल्यू लिख रहा हूँ. I am writing for h. This is time independent operator. क्या? Time independent. If the phenomena is time dependent, for example, electron jumping from one level to other level, then operator for h I will not write this. क्या? Then operator for, if the for time dependent phenomena, energy must be function of time. It should radiate, decay. Then I have to write for operator h, I h cross del by del t. Correct? That is time dependent Schrodinger wave equation. क्या? I h cross del by del t operated on psi is what? E psi. This is the Schrodinger wave equation for time dependent phenomena. 40 classes from now, whenever I will solve your BCS theory, Baldwin Cooper-H Ripper theory for superconductivity, I will write down the motion of Cooper pair of electrons. Energy is dq by dt, function of time. I will solve टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. पूरे कोर्स में एक ही जगह है ये, ओनली वन प्लेस टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बिकॉज ऑल अदर फिनोमेनाज whatever has been given into the syllabus of quantum mechanics, they are all time dependent, time independent phenomena. अभी समझाऊंगा. Every phenomena is time. So पहला डिसीजन लेना है whether the phenomena is time dependent or time independent. If time independent, then this operator for h I have to write this minus h cross square by 2m d2 by dx2 plus v psi. गुड. देखो क्या हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव. देखो ये तो हमेशा लिखना, दिस इज ऑलवेज, बिकॉज दिस इज नथिंग आइगन वैल्यू प्रॉब्लम. नो प्रूफ, इट कम्स फ्रॉम द माइंड ऑफ श्रोडिंगर. नो प्रूफ, इट इज एक्सिम ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. आई वांटेड टू मेजर ए, इंस्टेड ऑफ ए आई वांट टू मेजर एनर्जी. ऑपरेटर फॉर एनर्जी इज एच. सो नाउ आई एम राइटिंग टाइम independent Schrodinger wave equation. Independent Schrodinger's wave, and this is called wave mechanics. This quantum mechanics, when wave function is particle is described by a wave function, same thing is called wave mechanics. This quantum mechanics is also called Schrodinger's picture is also called wave mechanics. Schrodinger developed this wave mechanics, representing every particle by a wave function.
So this is minus h cross square by 2m d2 by dx2 plus v operated on psi is equal to e psi. ये लो d2 psi by dx2 plus v psi is क्या दी e psi. This is time independent Schrödinger wave equation. Good. Yes psi e psi. अब इसके बाद देखो कैसे लिखते हैं. How it is written, try to appreciate because I have to solve it. ये डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m d2 psi by dx2 प्लस v माइनस e psi 0 प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर. d2 psi by dx2 because I am making a standard differential equation. Now I am multiplying by minus 2, so this is plus 2 upon h cross square. इसको लिख दो जी e minus v psi 0. Same h psi g psi I can always write like this d2 psi by dx2 plus 2 upon h cross square e minus v psi. 3 स्टेप के बाद लिखा है, डायरेक्ट नहीं लिखा है. Don't write it directly. It comes from h psi e psi d2 psi by dx2 plus 2 upon h cross square e minus v psi 0. This is time independent one dimensional Schrödinger wave. 3 डायमेंशन में होता तो क्या लिखते? इसको डेल स्क्वायर लिख देता. 3D में होता तो क्या लिखते? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस v साइज e साई. दिस विल बिकम डेल स्क्वायर साई plus 2m upon h cross square a minus v psi 0. This is in 3D. 1D by del square will become d2 by dx2. Cartesian coordinates, correct? क्या भैया कोई बहुत मुश्किल है क्या इसमें? बहुत मुश्किल है क्या? बहुत कठिन लिखा जा रहा है क्या कुछ? ये तो कुछ है ही नहीं है भैया, अभी तो कुछ है नहीं, पहली क्लास है ये. अगर Schrödinger हाइड्रोजन एटम देखोगे तो पागल हो जाओगे तुम तो. मेरा एक स्टूडेंट था अभिजीत अग्रवाल, उसने अपने नोट्स में लिखा है या कहीं कहीं लिखा है कि Schrödinger वेव इक्वेशन को अगर 50 बार नहीं किया हाइड्रोजन एटम को तो कभी एग्जाम में नहीं होगा. मैंने कहा बहुत सही लिखा है यार, 50 बार अगर नहीं किया तो एग्जाम में नहीं होगा. लिखा हुआ है उसने कहीं 50 बार, और मैं कहूँगा 4 बार में हो जाएगा. मैं सिर्फ 4 बार में करा देता हूँ किसी भी चीज़ को, सिर्फ 4 बार में. 4 बार करोगे तो हो जाएगा. बट आईज एंड ईयर्स मस्ट बी ओपन. आँख कान नाक मुंह, आँख नाक कान मुंह सब खुले होने चाहिए. ऑल सेंसेस मस्ट बी ओपन फॉर लर्निंग फिजिक्स. यानी बंद दिमाग के जा रहे हैं ऐसे, कहीं भिड़ गए कहीं रोड में ही. तो आँख कान नाक मुंह बड़ी चीज़ समझा रहा हूँ. ऑल सेंसेस मस्ट बी ओपन. जिसको ठोकर लग जाती हो ज़मीन में वो आईएएस का एग्ज़ाम ना पास करेगा. ऐसे ऐसे अंगूठे के नियम ज़िंदगी खोज रखे हैं. अगर मैंने देख लूँ और कहीं तुम सीढ़ी से गिर गए या इधर उधर कहीं तुमको ठोकर लग गई तो इसका होता तुम्हारा दिमाग बंद दिमाग है यार, तुम्हारा सेंस ही नहीं चल रहा. और मैंने क्या कहा, आँख कान नाक मुंह सब खोल के रखना. एवरी ऑल सेंसेस मस्ट बी ओपन. मतलब समझा रहा हूँ, अगर इंडिया गेट के पास गए हो, एनजीएमए है, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के अंदर जाके कि कहाँ पटुआ पेंटिंग लगी हुई है और कहाँ काली घाट लगा हुआ है और कहाँ राजा रवि वर्मा की लगी हुई है, सब मालूम होना चाहिए. दैट इज व्हाट आई मीन बाई आँख कान नाक मुंह खुला. ये ना है. एक बंगाली आया मेरे पास, भैया तुमको कहानी सुनाऊँ, शायद सुनाई थी ना, कि मैं एवरी टाइम आई से दैट उल्टा लटकना होता है, उल्टा लटकना होता है. भैया वो अपने माँ बाप के साथ आया और बोला कि सर मैं शीर्षासन करना चालू कर दिया हूँ. उल्टा लटका. आपका वीडियो बार बार सुनता था, आपका उल्टा लटकना है, उल्टा लटकना है. तो मैं बहुत कंसंट्रेशन बढ़ गया, मैं बहुत हंसा अपने हिसाब से. और फिर मैंने कहा कि बेटा कि उल्टा लटकना इज एन इडियम इन हिंदी. दैट मीन्स यू हैव टू वर्क हार्ड, नॉट यू विल डू. कि शीर्षासन करने लग जाओ तो उल्टा लटकने लग गए.
तो आंख नाक मुंह खोल, जब मैं कह रहा हूं आंख नाक कान मुंह खोलना, इसका मतलब दिस इज एन ईडियम विच आई सेड कि जब आप चल रहे हो तभी भी मैं देख रहा हूं कितना अटेंटिव चल रहे हो, कहीं कष्ट वष्ट नहीं हो रहा है, मतलब आसपास सब देख के चल रहे हो, ऐसे ऐसे चलते चले जा रहे हो, गिर गए कहीं, एब्सेंट माइंडेड. दिस इज नॉट द एग्जाम ऑफ एब्सेंट माइंडेड, दिस इज एग्जाम ऑफ, and this is minimum things which I expect, which UPSC, and when I say I expect, that does not mean anything. When I say I expect, that means UPSC expects, because my frame of reference is set according to requirements of UPSC. That kind of smart is not the exam of geniuses कि बहुत बड़ा दिमाग हो कि कोई एल्गोरिथम नया लिख दो या कोई मैथमेटिक्स का नया सॉल्व, not at all. Only all run of the mill questions are asked, run of the mill. But minimum smartness is required, and that minimum smartness is also world class. इसलिए कभी भी किसी सक्सेसफुल को देखोगे ना तो देखोगे बहुत स्मार्ट है वो. ऑल मेंटल फैकल्टीज आर गुड, मेमोरी इज आल्सो गुड, कंप्रेंशन, कोई बात कहोगे तुरंत समझ जाएगा. अब तुम कोई बात कही जा रही, बात ही नहीं समझ रही, योर सेंसेस आर, यू आर नॉट कंसंट्रेटेड, नॉट फोकस्ड. चलिए जी, अब इसको देखो, अभी देखो d2 psi by dx2 from which side is psi, I brought d2 psi by dx2 plus 2m upon h cross square e minus v psi 0. This is Schrodinger wave equation, one dimensional time independent Schrodinger wave equation. This is reduces to, it is second order differential equation. Good. V is a function of x, or V is a constant, or V is a 0. Then also E is constant because a conservative system is a conservative system, है ना. Hamiltonian is an operator for conservative system. So energy is a constant of motion. Good. Energy is a constant of motion. Total energy is constant always. और E था क्या? px square by 2m. There could be two situations. One is E is always greater than 0. E is always total energy. E is total energy, correct? Defined by this. E is greater than 0. This is called scattering, particularly scattered, move out. This is called case of scattering, particularly move. टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन 0. जहाँ पर भी जा रहा होगा उस रीजन को क्रॉस करेगा, E इज ग्रेटर देन 0. इफ E इज लेस देन 0 इज ए बाउंड केस. पार्टिकल इज कन्फाइंड, वट एवर द रीजन इट इज देयर. इफ E इज लेस देन 0, इफ आई जस्ट पुट दिस कंडीशन, देखना यही छोटी छोटी चीजें विच मेक्स द डिफरेंस. आई विल राइट E ग्रेटर देन 0 लेस देन V0, और वाइस वर्सा E लेस देन 0 ग्रेटर देन V0. They are to be essentially to be understood to find out the solutions. E is greater than 0, positive, but it is less than V0. Good. Total energy is less than V0. How it is possible? Is it possible in classical mechanics? Energy क्या है? Kinetic plus potential है. How it could be less than V? That means kinetic energy is a negative quantity, which is classically forbidden. If E is less than V0, what is kinetic energy? Kinetic energy है क्या इसमें? इसमें kinetic energy क्या है? T is Ke. Ke को T लिखते हैं. E minus V0. If E is less than V0, kinetic energy turns out to be negative, and kinetic energy is always px square by 2m. Square of the mass is always positive, px square is always positive, kinetic energy has to be always positive, correct? So classically it cannot happen, it's a classically forbidden region. ये जो केस है भैया, E less than V0, very very important, classically forbidden region. अभी समझाऊंगा, यही समझना है, classically forbidden region. But quantum mechanically this is the only thing possible. अभी
Every time I say. If I say anybody, just fictitiously, that your probability of qualifying the civil service examination is 10 raised to power minus 2. What does it mean? You cannot qualify as good as this. If I say probability of qualifying this exam is 10 raised to power minus 2, जिसको ये कह दिया उसको मैंने बहुत बड़ा क्या कर दिया, कर्स दे दिया, मतलब वो कभी पास नहीं होगा। जिस शब्द को हिंदी में सरल भाषा में बोलते हैं कि यू आर नेवर गोइंग टू क्वालिफाई, उसको अगर मैं ऐसे कह दूं कि योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बहुतों को तो आर्ट्स वाले को कह दो समझ ना आएगा उसको, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग दिस मींस एज गुड एज सेइंग यू विल नेवर क्वालिफाई। समझो 10 raised to power minus 2 का मतलब है आउट ऑफ 100 एफर्ट्स यू विल क्वालिफाई ओनली वंस। क्लासिकल पार्टिकल शरीर है तुम्हारा, बट इफ द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वांटम पार्टिकल, झट से क्रॉस हो जाएगा यार, कुछ भी नहीं है तो कुछ है ही नहीं। क्वांटम पार्टिकल का क्या मतलब है टाइट, इफ दाई से द सेम पार्टिकल प्रोबेबिलिटीज ऑफ क्वांटम पार्टिकल फॉर क्लासिकल पार्टिकल ए मैक्रो सिंगल एंटिटी, आप हैं, यू आर ए मैक्रो सिस्टम, so for you probability is like 100 efforts you will make, then one of the efforts you are qualifying, then I will say your probability is 10 raised to power minus 2. But for quantum particles I will say I will never fire single particle. कहीं एक इलेक्ट्रॉन फायर किया जाता है क्या, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करके लाओगे क्या, नेवर। यू विल ऑलवेज फायर ए बीम ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, फ्लक्स, number of particles per unit area per unit time. I will always define how many particles are there. Electron of this much energy, what is the flux? So if 100 particles are hitting anywhere, one particle crosses, probability is 10 raised to power minus 2. अगर ये तो 10 raised to power minus 20 भी सिग्निफिकेंट है, 1 मोल में से कहीं फायर कर दूं, एवोगाड्रो नंबर में से एक पार्टिकल अगर क्रॉस हो जाए, probability is 10 raised to power minus 23. Because classical particles is a macro, quantum particles are micro. We always fire a beam in terms of intensity. So when I say probability is 10 raised to power minus 10 in quantum mechanics, that means out of 10 raised to power 10 particles, even if one particle is able to cross through that potential, I say particle has been successful. चलिए, तो पहले ये समझिए। सो दिस इज क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, ई इज लेस देन वी नॉट। तो अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो है मेरा ई लेस देन 0 ग्रेटर देन वी नॉट। चलिए पहले हम कर रहे हैं ई ग्रेटर देन वी नॉट। देखिए पहले यहाँ पर दो चीज़ें समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ई इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इफ वी इज आल्सो कांस्टेंट, वी में भी 0 और कांस्टेंट, बहुत सरल है, कुछ नहीं है। देखो E is always constant. E is always constant. Maybe greater than 0, maybe less than 0, irrespective of that. Greater than 0 is called scattering. Less than 0 is called bound particle. But E is a constant quantity. Conservative system. V, potential. If potential is a constant, V is also constant. Then E minus V क्या होता है? K ही होता है। के ही कितना है जी, पी एक्स स्क्वायर बाई 2m है, यही ना, इज ए कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। तो ये हो गया, देखो बताओ, ई माइनस वी को पी एक्स स्क्वायर बाई 2m लिख दिया तो क्या हो गया, पी एक्स स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर। ये टर्म क्या हो गया, पी एक्स स्क्वायर बाई, और पी एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया। क्या भैया, इफ वी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इफ वी इज कॉन्स्टेंट, देन दिस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, पी एक्स स्क्वायर इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। मोमेंटम इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। क्या हो गया बताओ, d2 psi बाई dx2 प्लस पी एक्स स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर सही 0। पी बाई एच क्रॉस को क्या बोलते हैं, के 2 पाई बाई लैम्डा, कांस्टेंट है कि नहीं।
बोले भैया ये कांस्टेंट है कि नहीं है, यहाँ पर भी बोल सकता था 2m e माइनस वी बाई एच क्रॉस को के स्क्वायर बोल देता, सीधे बोल देता कांस्टेंट है, ये v इज कांस्टेंट, टोटल बोल देता, चाहे यहाँ बोल देता। क्या है के स्क्वायर इज पी एक्स स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एंड विच वाज नथिंग, पी एक्स स्क्वायर क्या था 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी है भैया, ए माइनस बी बाई एच क्रॉस स्क्वायर। गुड, solution is very simple, is a constant quantity, d2 psi by dx2 plus k square psi 0। क्या solution बताया हुआ, इसको लिख दो, psi को लिख दो a raised to power alpha x, alpha square plus k square is 0, k alpha is equal to plus minus क्या आयोटा के। गुड गुड, देखो वो तब है जब ये प्लस के स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस के स्क्वायर, व्हेन प्लस के स्क्वायर, व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल ई इज ग्रेटर देन वी, ई इज ग्रेटर देन वी, दैट इज एसेंशियल पार्ट, एंड वी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, वी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी एंड ई इज ग्रेटर देन वी, देन दिस इज देयर एंड सॉल्यूशंस आर psi x, second order differential equation will have two solutions, two arbitrary constants, c1 e raised to power iota kx plus c2 e raised to power minus iota kx। बताइए भैया ये कब सोल्यूशन है, व्हेन e is greater than v and both of them are constant। if v is function of x, कुछ भी है, हाफ के एक्स स्क्वायर है v, उल्टा लटक लोगे, उल्टा, और सॉल्व ना कर पाओगे तुम, कितने भी मैथमेटिक्स के ज्ञानी रहो तुम। क्या कहा, जस्ट ए डीसी डिफरेंशियल इक्वेशन को v को हाफ के एक्स स्क्वायर डाल लो और करके सॉल्व करके लाओ कल तक घर में, 5 दिन में भी कर लोगे तो नोबेल प्राइज दूंगा। अगर रट के ना बैठे हो कि हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो, समझ में आया क्या कहा मैंने सारी महाभारत बता दी आपको। अगर यहां फंक्शन ऑफ एक्स डाल दूं तो किसी आदमी को मैंने 100 साल से ज्यादा से इमॉर्टल कर दिया, उसको क्या कर दिया, कितना बड़ा पुरस्कार दिया है उसको। नोबेल प्राइज तो बहुत छोटी चीज है, हर साल किसी ना किसी को मिल जाता है, उसको क्या कर दिया मैंने, इमॉर्टलिटी गिफ्ट कर दी। रोज उसका नाम लेना पड़ेगा कि हर्माइट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, हर्माइट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऐसी इक्वेशन ना है कि वेरिएबल सेपरेबल है, कोई कॉसी इक्वेशन है जो हम झट से सॉल्व कर दें। देयर इज ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू सॉल्व इट। Hermite solved that equation if v is a function of x, correct। Complicated हो जाएगा solution of differential, second order differential equation will become greatly complicated if v becomes function of x। करके देंगे 5वीं क्लास में जब सिंपल हार्मोनिक और गुड, सरल से कठिन की तरफ जा रहे हैं। सबसे आखिरी क्लास जो है ना, हाइड्रोजन एटम सॉल्व करेंगे, जिसको अभिजीत अग्रवाल ने क्या लिखा है, 50 बार करोगे तब एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और मेरा क्या वादा है, 4 बार करोगे तो 4 बार में कर लोगे, क्योंकि हम पूरी डेरिवेशन को 5 स्टेप में बांट रखा है, कि 5 स्टेप याद कर लो। हमने पूरे डेरिवेशन को क्या कर रखा है, 5 स्टेप है, यही चेक करता हूँ। 20 नंबर का डेरिवेशन है, हर स्टेप के 3 मार्क्स लिख दो। मैथमेटिक्स कट मारो। तो मैंने कहा अभिजीत अग्रवाल को, उसके बाद जब उसने लिखा 50 बार, तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि उसको कितने मार्क्स आए, 345। फिर मैंने नोट्स लिखो किसी से अपनी वेबसाइट में, जब उसने लिख दिया, मुझे किसी ने बताया कि उसने लिखा है 50 बार करना होता है, तो फिर मैंने कहा मैं तो कभी 4 बार से ज़्यादा कराया नहीं। फिर मैंने लिखवाया कुणाल चिल्कू से, यूपी कैडर में IAS ऑफिसर है, 2011 बैच के, 410 मार्क्स आए थे। कुणाल चिल्कू IAS ऑफिसर है, IIT खड़गपुर का बीटेक था। ये भी बताता जाऊँ क्वालिफिकेशन कहाँ की है, चेक कर लो जाके। 2011 410। मेरी पिछली वाली वेबसाइट में जैसे ही मुझे किसी ने कहा कि उसने लिखा है 50 बार, तो मैंने तुरंत ही क्वेश्चन पूछा कहीं वीडियो में बना के कि उसको मार्क्स कितना आया था। 345, और 345 बहुत कम मार्क्स था उस जमाने में। हाईएस्ट मार्क्स आया करता था 390, 395, मतलब 360 से ऊपर ही ए ग्रेड मिलता था। ए ग्रेड का मार्क्स था 60%। अभी 600 में 60% कितना हुआ, 360। 500 में 60% कितना हुआ, 300। कितने का आता है 300 अभी, 10 लोगों का, तभी भी उतने का ही आता था।
60% 360, 70%, मतलब 420 किसी का नहीं आया। 65 से 68 के परसेंट तक आ जाता है, कभी भी आता है, पहले भी आता था। तो उसको कितना आया था 345। मैंने कहा 345 के लिए उसने 50 बार किया है, 50 टाइम्स। 400 वाले के लिए तो 400 वाले ने लिखा सर कहते हैं मैथमेटिक्स स्किप कर दो, मैथमेटिक्स स्किप कर दो, उसने यही लिखा है। इसीलिए उसको मैंने कोट किया तुरंत ही, मैंने कहा लिख, और कुछ और लिख देता तो वेबसाइट में डालता ही नहीं मैं। और बताऊं भाई, मेरी वेबसाइट में डालना है मुझे, वही चीज डालूंगा जो मुझे सही लगेगा। तुम एक बार फर्स्ट रैंक ला सकते हो, एक बार तुम कोई रैंक ला सकते हो, या तुम मेरे तजुर्बे का मैच तोड़ो है यार। मैं तो हर साल टॉपरों की कॉपी जांचता हूं, मुझे मालूम है किसको कैसे छोटा करना है, किसको बड़ा करना है, मुझे मालूम है क्या रिक्वायर्ड है। सो मैथमेटिक्स इज सेकेंडरी और टर्सरी। अगर वो 10 पेज का डेरिवेशन है तो बिल्कुल 10 पेज लिख दोगे तो बिल्कुल भी तुमको मैं 50% भी नहीं दूंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। I want that derivation to be done in 3-4 pages. So you have to skip the maths, wherever the math, but main steps must be written. Your all physics based steps must be written. ये physics में क्या, ये physics बता रहा हूँ आपको यहाँ पर कि v अगर constant है, अभी बता दूंगा, सारा खत्म हो गया। ये लो, ये इनफाइनाइट वेल है, इसके अंदर पोटेंशियल क्या, वॉल में तो हो नहीं सकता पार्टिकल। पार्टिकल कहाँ, 0 से a के बीच में जा रहा है, कोई पोटेंशियल है क्या, कोई बैरियर है क्या, नहीं है। V0 E माइनस बी में क्या हो गया, सिंपल ही हो गया। और इसके अंदर पार्टिकल है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। 1D बॉक्स हो गया, इनफाइनाइट वेल हो गया। ये लो, ये फाइनाइट वेल कर दिया। पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, पोटेंशियल कहाँ, पहले तो इनफाइनाइट था, अब पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। द रीजन क्या है, x लेस देन 0, x लेस देन 0, पोटेंशियल कितना है, V0 है। x लेस देन 0 पोटेंशियल क्या है, मालूम नहीं है तो क्या कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट वेल। 5 ही प्रॉब्लम है। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट वेल। walls are at infinite potential, walls are finite। ये V0 डाल दिया, ये V0 डाल दिया। दिस x इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। पार्टिकल इज ट्रैप्ड, पार्टिकल ऑफ मास m, एनर्जी इज ट्रैप्ड। बस यहाँ पर 3 पोटेंशियल है, x लेस देन 0, v इज V0, x ग्रेटर देन 0, लेस देन a, v इज 0, x इज ग्रेटर देन a, v इज V0। ऐसा लिख दिया, इसका ये ग्राफ बना दिया। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट वेल प्रॉब्लम। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, उसमें सिर्फ कोई रीजन नहीं है, पार्टिकल कैन नॉट गो, जा ही नहीं सकता। x लेस देन 0 पार्टिकल कैन नॉट गो, क्यों नहीं जा सकता, इनफाइनाइट वॉल लगी हुई है, हिम्मत है क्रॉस करके चले जाओ, उड़ के भी नहीं जा पाओगे, इतनी ऊंचाई है, इनफाइनाइट है। पक्षी भी उड़ के भी 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर थोड़ा जाता है यार, जाता है क्या, नहीं जाता है, ये तो इनफाइनाइट है। जब तक मेजर कर सकते हो तब तक वो इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। चाहे आप ट्रोपोस्फीयर गिनो, चाहे स्ट्रेटोस्फीयर गिनो, चाहे मेसोस्फीयर गिनो, चाहे एक्सोस्फीयर गिनो, जब तक हाइट गिन के बता रहे हो ना 500 किलोमीटर ऊपर, तब तक क्या है, वो फाइनाइट पोटेंशियल है, करेक्ट। इनफाइनाइट पोटेंशियल मीन्स व्हेन यू स्टॉप टू मेजर, you cannot measure, infinite, no one can go, so there is no chance that it will go x less than 0, so only motion possible is between 0 and a, and total energy is positive, v is 0, here v is 0, e is greater than 0, यहाँ पर v greater than 0 है, here also e greater than 0। बताइए, particle is having only kinetic energy, particle is trapped, problem is that particle is trapped in a finite well। If E would have been greater than V0, then no fight, ये तो चला ही जाता, कहीं भी जाता, ये तो क्लासिकली चला जाता। E is greater than V0, that is sufficient kinetic energy। If E is greater than V0 तो कोई फाइट ही नहीं है। If your E is greater than V0 and E is your greater than 0, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्टिकल कैन गो टू रीजन 1, पार्टिकल कैन गो टू रीजन 2, फाइनाइट वेल, इट कैन इजीली फ्लाई ऑफ, इट इज हैविंग सफिशिएंट एनर्जी। स्विमिंग पूल इज 6 फुट डीप, इज ए स्विमिंग पूल,
6 feet deep and your height is 7 foot. डरना है क्या? अरे 4 फुट गहराई है. It is 4 feet deep. You are 6 feet tall. Are you frightened? No way. लेकिन 24 फुट का होगा तो डूब जाओगे. अगर 24 फुट वाला हो तो डूब जाओगे, इसलिए स्विमिंग पूल में मत कूदना. मेरे साथ का एक बैचमेट मर गया था. एक IAS का एग्जाम पास करके मर गया 91 का. 91 के एग्जाम का ट्रेनिंग सेंटर गया हुआ, कहीं गया था, स्विमिंग पूल में कूद गया और मर गया. अखबार में छपी थी. और हर साल कोई ना कोई मर जाता है और मैं इन सब कहानियों को पढ़ के सबको सुनाता रहता हूँ. तो मेरा एक बैचमेट भी मर गया था 4th ईयर में बीटेक करने के बाद. घर जाने वाला था, जाने से पहले कहीं कूद चला गया मुंबई में और वो स्विमिंग पूल में डूब गया. मालूम ही नहीं था 24 फुट गहरा होता है, मालूम ही नहीं था. स्विमिंग पूल डिफरेंशियल लाइटिंग होती है उसकी. शुरू में 4-5 फुट होगा और जैसे आगे जाओगे वो 24 फुट हो जाएगा. तो अगर बहुत अच्छे से तैरना नहीं जानते हो, पूरा खतरा है कि डूब जाओगे स्विमिंग पूल में. इसलिए बड़ी बात बता रहा हूँ. ये भी बड़ी कहानी जिंदगी की सुना दी तो कम से कम डूबने से बचा दिया तुमको मैंने. क्योंकि बहुत सारे क्या फिजिक्स जो पढ़ते हैं ना, वो सब कुछ नहीं किए रहते हैं और जब पहली बार देखते हैं स्विमिंग पूल से पागल हो गए, वो कूद गए आकर. फिजिक्स पढ़ने वाले देखो, मैं तो इसलिए को आई एम ऑल्सो इन द सेम बोट. आई हैव बीन ऑल्सो इन द सेम बोट. कभी स्विमिंग पूल देखा ही नहीं. जब पहली बार देखा तो कूद जाओ. मैं नहीं कूदा भैया, कभी नहीं. मैं अपने को हमेशा बचा के रखता था, अभी भी बचा के रखता हूँ. जिंदगी इतनी प्रीसियस है कि पूरी जानकारी प्राप्त कर लूँगा कि हाँ कितनी गहराई है. तो इसलिए डिफरेंशियल हाइट डेप्थ होती है उसमें. Good. So just I said, a finite well, if this is the case, E greater than V, less than V, easily it is not important. It is not important. समझ रहे हैं क्या कहा? कोई भी सोच रहा है कि क्रॉस कर ही जाएगा तो क्या खतरा है? It is not a quantum mechanical case. It is a classical case. E greater than V, sufficient kinetic energy, particle will cross. I will not study this, but I am going to study. हम ये पढ़ेंगे भैया, E less than V naught greater than 0. This is quantum mechanical case. Only quantum mechanics will give you a chance, unrealistic chance, that you can qualify. Even when the probability is 10 raised to the power minus 18, then also some other person is successful. Good. बाजी राम की कोचिंग वाला कह दे मेरी प्रोबेबिलिटी 10 रेज़्ड टू पावर -2 है, बहुत अच्छा है. उसके लिए क्या बुराई है यार? 100 में से एक पास हो गया, 5000 को पढ़ा रहा है, 50 तो पास हो ही जाएंगे. उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? उसके लिए तो 10 रेज़्ड टू पावर -4 भी कह दूं तब भी हो सकता है, चल जाए. 20000 को पढ़ाता है, 20000 में 2 भी पास हो गए, हो गया. गुड फॉर हिम. आपके लिए तो बहुत बुरा है. 10 रेज़्ड टू पावर -2 ही बुरा है. मेरे लिए भी बहुत बुरा है. 100 लोगों को पढ़ा रहा हूँ और 100 में अगर एक ही पास होगा तो अगली बार एक भी नहीं आएगा. तो मेरे लिए तो 10 रेज़्ड टू पावर -1 से कम ही चाहिए. 10 में एक पास कराना है, 10 में एक पास कराना है. कम से कम 30 की क्लास में कम से कम 5 पास करने चाहिए. ये सब डांट वाट इसलिए पड़ती है कि 30 की क्लास में कम से कम 40 की क्लास में 7 को पास करना चाहिए. 7 ये थंब रूल है मेरे. अगर आई एम टीचिंग द क्लास अ बैच ऑफ 40, at least 7 to 8 students should qualify the exam. Not interview. I am not the person who counts कि इंटरव्यू देने गए, प्रीलिम्स पास हो गए, मीन्स नॉट. फाइनल पास में लिस्ट में था कि नहीं, पास. लिस्ट में सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज व्हाट इज काउंटेड. 40 के बैच में हमेशा मेरे यहाँ 7 और 8 पास होते हैं, हमेशा, ऑलवेज, एवरी बैच. तभी मैं कहता हूँ जब बैच खत्म हो जाता है एक दूसरे की शक्ल पहचान लो. 3-4 साल के अंदर फोटो छाप दूंगा. 3-4 साल के अंदर इस बैच का भी किसी न किसी का फोटो छापूंगा. वो आप हैं या कोई और है, वो नीरज कुमार है या कोई, कौन से आपका क्या नाम है, या वो विकास स्वामी था, चला गया, वो आ नहीं रहा है, ऑनलाइन में चला गया.
या गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी क्या नाम है आपका? अभय गुप्ता नाम है। भाई साहब ये भी है, ये भी है, केशव अग्रवाल नाम है ना, केशव अग्रवाल, आपका नाम भी याद कर रखा है मैंने, केशव अग्रवाल, फिर अभय गुप्ता, नीरज कुमार, 3। तुमको टेस्ट देने या देने ना देने की ज़रूरत नहीं है, दोगे तब भी मार्क्स मुझे दिमाग में फिट हो रखा है। एक कॉपी जांचने के बाद मैं आदमी को क्या कर लेता हूँ, अपने दिमाग में फिट कर लेता हूँ, फिट। हर बार वही आएगा, उससे थोड़ा बढ़ेगा ही जो पहली बार आ गया है। गुड। कांस्टेंट पोटेंशियल क्या 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 प्रॉब्लम करती है? इनफाइनाइट वेल, फाइनाइट वेल, स्टेप पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल कैसा है? ये बैरियर लगाया हुआ है, बैरियर, दीवार खड़ी कर दी मैंने, वॉल, व्हाट हाइट? वी नॉट, इधर से पार्टिकल आ गया, दिस साइड पोटेंशियल 0, दिस साइड पोटेंशियल वी नॉट, व्हाट? कांस्टेंट पोटेंशियल। क्या कांस्टेंट पोटेंशियल? E greater than 0, E greater than 0, it could be, E could be greater than V naught, greater than V naught, it will easily cross through the barrier, sufficient kinetic energy, but I will solve, एक बार तो करके दिखाएंगे ही। E less than V, quantum mechanically case is important when E is less than V, because then classically forbidden, kinetic energy is negative, but quantum mechanically there is nothing called quantum, there is no case of kinetic energy being negative. When E less than V, then there is also chance, and that chance is interpreted, why there is a chance between when E is less than V, consequence of Heisenberg uncertainty principle. Whatever I will say x is equal to 0, it is not exactly x, there will be some error in the measurement of x, in that region only there is a probability, we will explain. So quantum mechanically always important case is E less than V, quantum mechanically this is important. 4 प्रॉब्लम हो गई। इनफाइनाइट वेल, फाइनाइट वेल, स्टेप, 2 को जोड़ दो यार, 1 हो गया। दिस इज स्टेप पोटेंशियल, और ये क्या है? दिस आल्सो स्टेप पोटेंशियल, दिस इज राइजिंग स्टेप, लोअरिंग स्टेप, फॉलिंग स्टेप, राइजिंग स्टेप, फॉलिंग स्टेप। स्टैंडर्ड डेरिवेशन किसका करूंगा? राइजिंग स्टेप। उगते सूरज को प्रणाम, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, क्या हो गया? बैरियर, रेक्टेंगुलर बैरियर। Potential is still constant. Potential is still constant. E minus V is a constant quantity, whether less or more, but it is a constant quantity. Correct? इसको उल्टा करके रख दूं. This is called rectangular barrier. ऐसे कहीं बैरियर लगा रखा है, ये बैरियर है. Height is V naught, length is L. It is called rectangular बैरियर. इसको उल्टा करके रख दूं, रिवर्स. ये था ना बैरियर, दिस इज ए बैरियर, दिस इज ए बैरियर. पोटेंशियल इज अप्लाइड, V नॉट पोटेंशियल इज देयर इन द लेंथ L. रिवर्स करूं, रिवर्स करूं, ये क्या हो गया? फाइनाइट वेल, फाइनाइट वेल, फाइनाइट वेल. 4 केस हो गए, फाइनाइट वेल, इनफाइनाइट वेल और इनफाइनाइट वेल, फाइनाइट वेल, स्टेप पोटेंशियल, rectangular barrier. All the 4 cases potential was constant. Solution of differential equation is extremely simple. E minus V is a constant quantity, where if E is greater than V, it is a positive quantity plus K square. D2 psi by, देखो H psi is E psi, it reduces to plus 2m upon H cross square, E minus V psi 0. If E greater than V, this is a positive quantity. देखो हम इसको ये कह रहे हैं 2m, ये कुछ नहीं है, K स्क्वायर है, और K कुछ नहीं है. रिवोगली वेवलेंथ यहीं से आएगी, रिवोगली वेवलेंथ निकालनी है. 2m by H cross square E minus V काइनेटिक एनर्जी. 2m E minus V is a 2m kinetic energy is a potential square, sorry, momentum square by H cross square is K square. If E is greater than V, it is a positive quantity.
d2 साई, बस खत्म कर दिया देखो, प्लस के स्क्वायर साई 0. सॉल्यूशन इज व्हाट? a e raised to power iota k1x plus b e raised to power minus iota k1x. What are these solutions called? Complex solutions, trigonometric solutions, oscillatory solutions. All the things are same. Complex और trigonometric. Trigonometric भी यही है. C1 sin kx second order differential equation, two arbitrary constants. Iota k1x represents particle along positive x-axis, minus iota kx particles along negative x-axis. मालूम है ना आपको? This is particles along positive axis. This is particle. This is standing wave solution. This is standing wave solution. Good. This is called, याद कर लो, complex or trigonometric. Both the things are same. Also called oscillatory solutions. When E is greater than V, irrespective, E is greater than V, E less than 0 है, कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता, but E must be greater than V. ये तब भी होगा, देखो, E less than 0, greater than V naught. E greater than V naught, solution is complex or trigonometric, correct? E less than V naught, E less than V naught. ये देखो, अगर E लेस देन इज नेगेटिव क्वांटिटी, यहाँ माइनस बाहर ले लूँ कॉमन, 2mh को, फिर से इसको तो पॉजिटिव ही बनाना है मुझे. ट्राई टू अप्रिशिएट बस, बिकॉज आई एम कंप्लीटिंग. इफ E is less than V and I am treating V constant or not even constant, but E is less than V, this I will write d2 psi by dx2 minus 2m upon h cross square v minus e psi. अब इसको हम k डैश बोल देते हैं. चलो, अब तो पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं? तो k डैश स्क्वायर, पॉजिटिव क्वांटिटी मीन्स k डैश स्क्वायर, 2m upon h cross square v minus e h k डैश square. If e is less than v, that is how I will write. This becomes d2 psi by dx2 minus k dash square psi. अब क्या सोल्यूशन? एक्सपोनेंशियल. d square minus or right e raised to power alpha square minus k dash square is 0, alpha is plus minus k dash. So solutions are c e raised to power k dash x plus d e raised to power minus k dash. What are they called? Exponential solutions. Good. So when E is less than V, solutions are exponential. And when V is a function of X, is a complicated, we have to solve unique kind of a standard technique I have to use when V is a function of X. Only one problem is there, which is most difficult out of these 5 problems. Simple harmonic oscillator. That is also the simplest one-dimensional motion. Simple harmonic oscillator means 1D motion. Potential is half kx square. Because V is a function of x square, therefore solution has to be done by a Hermite's polynomials. We will do, that is the 5 problems. Good. 5 problem का नजरिया दिखा दिया जी. कल फिर से मिलते हैं, same time, same place. Class is concluded and hopefully you will get that. ये कल मिल जाएगी. कल आपको नया मिल जाएगा 126 पेजेज. वो बना रहा है, कल मिल जाएगा आपको सारा. कल सीट नंबर 1 को ख़त्म कर देंगे, सीट नंबर 2 के बहुत सारे प्रॉब्लम कर देंगे. फर्स्ट वी विल फिनिश द सीट नंबर 2 and then I will do one problem 1D box and maybe free particle.